Yeah, and I'm going to share with you this sketch in this video. And it took me around 16 hours. And this is A3 size of paper. I have drawn it on ivory sheet. This is ivory sheet. And the materials requirement, I will give you a list on this video and in description below. So you can check it out. And I have already posted a video on how I have done this outline. So I will give you the link in the description. So you can check it out and you will understand that video easily that how I have done this outline just because I have done so much mehnat. Yeah, so let's talk about this sketch. So in this video I will give you the full tutorial how I'm doing and which things I'm using, which brand. So watch till end. If you want to contact with me, so details are here. Yeah, so let's check this video. I hope you will like it and I have explained it. Yeah, so let's see. We about to turn it on. So first I am doing from the hair portion of the sketch. So for that I am using Camlin's charcoal pencil. This is soft one and it's come in the range of rupees 15 in local market. Yeah, and I'm just doing it in any direction you can do it just because it is charcoal pencil. I'm not applying any pressure to draw this. And why I'm using this charcoal pencil for hair, just because it's give a dark result in a without any pressure, and it save our time also. Somewhere I'm doing more dark and somewhere I'm just doing it lightly to look the hair more realistic. And I'm shading the charcoal always from the makeup brush. पर ये शेड काफ़ी easily opt कर लेता है चारकोल को, तो मैं इसलिए यहाँ पर मेकअप ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए. और कोई और टूल का हम इस्तेमाल करेंगे चारकोल को ब्लेंड करने के लिए तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाती, जस्ट लाइक टिशू, क्योंकि टिशू खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है उस चारकोल पाउडर को और पेपर पे लगने नहीं देती. सो दैट आई एम यूजिंग हियर मेकअप ब्रश. So now let's move to the ear portion. For that I'm using here Brustro's B grade pencil for a bare shade, and it will shade like light, it will shade light. So I'm using here the B grade of pencil of Brustro. And in the dark area, like in the dark shadow, I'm using here a 5B pencil of Brustro and just shading it out from the brush and the paper stump also, and giving the highlights with the mechanical eraser. And the mechanical eraser is very cheap as comparison to Monotombo eraser, and I haven't yet purchased the Monotombo eraser, so I'm just using it. And like seriously मुझे ये अभी तो बहुत ही बेटर लगी है और आई डोंट थिंक कि मुझे अभी कोई और इरेज़र ख़रीदनी चाहिए क्योंकि मेरा काम इससे चल जाता है. और ज़्यादा से ज़्यादा आई हैव इलेक्ट्रिक इरेज़र टू डू इट, सो I am not just thinking about to buy that. In future I will buy it, but right now I'm not going to buy. And yeah, so let's move to the second ear, and we will do the same thing we have done on the first ear. So let's move to the eyebrow section, and we will here do the base layer, just because क्योंकि जब हेयर सेक्शन में जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे हमें बेस लेयर की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हेयर पूरे हमारे बेस को मतलब ढक देता है, सो वी अनेबल टू सी इट. बट आईब्रो की बात करें तो हमें आईब्रो की स्किन दिखती है, सो दैट आई एम जस्ट डूइंग द बेस लेयर ताकि वो थोड़ा सा और रियल लगे, और जब ब्लेंड करे तो अलग ही टेक्सचर आता है और लाइक इट्स लुक रियल. सो या सो इन द लोअर पोर्शन ऑफ द आईब्रो I am shading the 5B pencil of Brustro, and then just doing the same as we have done here. Yeah, after doing all these things, blending with brush, so I'm using here charcoal pencil on eyebrow and doing the
हेयर सेपरेटली, क्योंकि आईब्रो में हमेशा लाइक एक एक हमारे हेयर दिखता है और यहाँ पे मिक्स हो जाता है, बट स्टार्टिंग में ये काफ़ी एक एक हमें ड्रॉ करना होता है और काफ़ी सेपरेटली, और लाइक फाइन फाइन हेयर्स ड्रॉ करना होता है, जो कि हमारे फॉरहेड और बियर्ड सेक्शन नहीं करना पड़ता। सो अब आई पोर्शन की बात करें तो आई पोर्शन में जहाँ पे डार्क एरिया है, लाइक आई लीड और आई बॉल, और जहाँ पे हमें डार्क शेड चाहिए वहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और somewhere I'm using in the light shade. For some light shade I'm using B pencil or 5B, and then just blending it out from the paper stump or makeup brush. मैं वही मेकअप ब्रश का यूज़ कर रही हूँ जो मैंने हेयर्स में किया था, आईब्रो में की थी, और आगे भी उसी ब्रश को कंटिन्यू करेंगे। या सो वी विल डू द सेम थिंग ऑन दिस सेकेंड आई। या सो हमें शेडिंग का ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहाँ पर ज़्यादा डार्क शेड है, कहाँ पे लाइट शेड करनी है, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम पिक्चर को अच्छे से देखेंगे गौर करके कि कहाँ पे हमारी जो लाइक किस साइड से हमारी जो लाइट आ रही है और किस साइड लाइट ज़्यादा आ रही है, और फेस के किस किस हिस्से में ज़्यादा डार्क एरिया है, और कहाँ कहाँ पे लाइट शेड करनी है, कहाँ पे कितना शेड करना है, कहाँ पे कितना ब्लेंड करना है। सो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप पिक्चर को अच्छे से देख पाओगे। सो मैं तो यही कहूँगी कि पिक्चर को पहले ब्लैक एंड वाइट फिल्टर में चेंज कर ले फिल्टर में, और फिर उससे बनाने की कोशिश करें, क्योंकि उससे आपको एक बहुत ही आसानी होती है ड्रॉ करने पे। सो जैसा कि मैंने नोज़ सेक्शन में किया, जहाँ पे डार्क थी वहाँ पे मैंने चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल किया, और मैं बियर्ड वाले सेक्शन पे भी और लिप में भी मैं जहाँ पे डार्क शेड है वहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हेयर्स और आईब्रो, आईज, नोज़, लाइक ये सारी चारकोल पेंसिल सॉफ्ट वाली मैं यूज़ कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ये सेम लुक आएगी। और like if we will use the hair from the charcoal pencil and we will do the eyebrow section with the graphite pencil, so it will look lighter. आईब्रो हमारी काफ़ी लाइट हो जाएगी और हेयर डार्क हो जाएगी, और आईज भी हम चारकोल पेंसिल से करेंगे, सो इट विल नॉट शूट, एंड और ये रियलिस्टिक भी नहीं लगेगा लाइक। और ग्रेफाइट को ड्रॉ करते हैं जब भी हम लाइक डार्क शेड में जहाँ पे बड़ी एरिया हो, तो वहाँ पर ग्रेफाइट काफ़ी शाइन करती है, जो कि रिकॉर्डिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो मैं जब से ये चारकोल पेंसिल अपने स्केच पे यूज़ कर रही हूँ, तो मैं जहाँ पर डार्क एरिया और जहाँ पर ज़्यादा बड़ी एरिया होती है वहाँ पर मैं चारकोल का यूज़ करती हूँ। पहले मैं ग्रेफाइट का यूज़ किया करती थी, और उस टाइम मुझे रिकॉर्डिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट नाउ आई एम नॉट फेसिंग दैट प्रॉब्लम। बियर्ड सेक्शन का भी वही बेस कर लेना, जैसे हमने आईब्रो को ड्रॉ किया था वैसे ही सेम बियर्ड सेक्शन को करना है, और जब जब शेडिंग की ज़रूरत होगी तब तब हम शेडिंग करेंगे। और लाइक और जस्ट बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी शेडो आएगी तो वहाँ पे हम 5B पेंसिल का यूज़ करेंगे, एंड देन उसे चारकोल पेंसिल से हेयर्स को ड्रॉ करेंगे, एंड देन आई विल ब्लेंड इट विथ मेकअप ब्रश। Turn it on. Finally, let's move to the skin texture. So for that I'm using here B grade of Bristol and shading it out. मैं इसे काफ़ी लाइटली पहले शेड करूँगी और लेयर बाय लेयर करते जाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा आसानी पड़ती है हमें फ़ोटो देख करके लाइक। या सो मैंने स्किन टेक्सचर पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं कि स्मूथ शेडिंग कैसे करनी है और लाइट शेड कैसे करनी है।
सो आपको वो वीडियोस आप चेक कर लेना, बहुत डिटेल से मैंने बताया। और तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्किप करते हुए जाऊँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और उतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उतना कुछ है नहीं क्योंकि बॉयज़ में तो हेयर और बियर्ड यही सब सारे सेक्शन ज़्यादा मायने रखती है। बस वही सब ड्रॉ करने से लग जाता है कि हाँ ये एक्चुअली में हु इज़ दैट। तो मैं तो ज़्यादातर रियलिस्टिक ड्रॉ करना ही पसंद करती हूँ एंड आई एम जस्ट मेकिंग द पोर्ट्रेट्स। सो यहाँ पे आई एरिया में बहुत ज़्यादा ही डार्क वैल्यू दी हुई है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट में भी। तो वैसे ही ड्रॉ करें जैसा कि हमारे पिक्चर में है। और उससे ब्लेंड करने के लिए सम टाइम आई विल यूज़ टिश्यू पेपर एंड सम टाइम आई विल यूज़ ब्रश। We about to turn it on. Turn it. We about to turn it on. Turn it. We about to turn it on. 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 We about to turn it on. We about to turn it on. और नाउ लेट्स डू दी क्लोथ्स। तो क्लोथ्स में मैं सेम वही चीज़ कर रही हूँ। वेयर द डार्क एरिया आई एम यूजिंग हियर चारकोल पेंसिल सेम एंड फॉर ड्राइंग द लाइंस, जैसा कि हमें कपड़े में दिख रही है जो लाइंस हैं, जो स्टेप्स ड्रॉ हुई है, वो हम चारकोल पेंसिल से ही कर रहे हैं। और ऐसे मैं पेपर स्टम्प से शेड करूँगी, आई मीन ब्लेंड करूँगी, पेपर स्टम्प से ब्लेंड करूँगी। और अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। सो बैकग्राउंड मुझे थोड़ा लाइट वैल्यू में चाहिए और मुझे बहुत ज़्यादा उसमें टाइम भी चल जाता है अगर हम ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करें तो। एक बार ग्रेफाइट पेंसिल स्लोली चलाओ, फिर उसे ब्लेंड करो और एक लेयर दो। सो मैं यहाँ पे जो मेरी ग्रेफाइट पेंसिल है 5B की, उस ग्रेफाइट को मैं यूज़ कर रही हूँ, अपने हाथों से पाउडर बना रही हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास एक शार्प नाइफ है और उसी के थ्रू मैं यहाँ पे ग्रेफाइट पाउडर बना रही हूँ और वो पाउडर मैं यूज़ करूँगी अपने बैकग्राउंड को शेड करने के लिए। सो अब शेडिंग हो गई है। सो अब मैं इसे बी पेंसिल से बी ग्रेड पेंसिल से इसे अच्छे से इसके शेड करूँगी और क्लियर, और फिर इसे ब्रश से ब्लेंड करूँगी और ये हमारा बैकग्राउंड एक साइड की तैयार हो जाएगी। और जहाँ पे डार्क वैल्यू है बैकग्राउंड में, वहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और
सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम अपने फेस वाले टेक्सचर में किया, हेयर में किया। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क करेंगे, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट करेंगे। सो या एंड जहाँ पे मुझे एकदम ही डार्कर लुक चाहिए, या सो आई एम यूजिंग हेयर चारकोल पाउडर and this is really homemade and I just love it and I don't think so I should buy. I'm always shading the charcoal powder or charcoal with brush, so yeah. टाइम आ गई है सिग्नेचर देने की। यार सो सिग्नेचर करने के वक्त आ गई, सो मुझे आई वाज जस्ट वेरी कंफ्यूजिंग दैट वेयर आई विल डू इट, सो फाइनली आई एम डूइंग। Yeah, so thank you so much for watching this video. If you haven't subscribed my channel, then subscribe to my channel, and if you like this video, then give thumbs up. So bye.